India has won against Australia. KL Rahul, man. First of all, I really want to say again that apologies. I know I have criticized KL Rahul a lot, and I initially also told that on this channel that he should not be a part of the World Cup team initially. But guys, let me clarify one thing before everyone joins in and starts attacking me. That I have never doubted KL Rahul in Test cricket and also in low scoring pitches, low scoring ODI cricket. He has always delivered. There has never been a time. My only contention was that when you have to chase 300 plus, or even on this pitch, if the target was 260 plus, is KL Rahul the right man? But for today, I don't want to talk about any of those things because KL Rahul has proved himself as an integral part of this member. Australia's first defeat in an opening match of the World Cup has been handed to them, and KL Rahul just missed being part of that elite club where two Indians only sit. That is the Centurions against Australia in a World Cup, which is Shikhar Dhawan and Ajay Jadeja in 1999, both coming at the Oval. So, what a fantastic win! First of all, before giving credit to KL Rahul and Virat Kohli, I just want to say all credit should go to the bowlers because from 25 overs onwards, the way our spinners bowled, 30 overs, 104 runs and 6 wickets. It was just amazing. Like they totally locked down the. It was a total lockdown by the spinners. The Australians did try to attack Kuldeep Yadav, but they couldn't do it. David Warner wicket was, I think, very crucial because that partnership was going on between David Warner and Steve Smith, two of the important members of the Australian team. And breaking that partnership, I think, was very crucial. Breaking the partnership of uh, David Warner and Steve Smith. Now, Pratik is here. Pratik, also have seen a change in KL Rahul that he's taking now a lot of singles. Actually, he's rotating the strike very well, and that change has been the last 2 months since he started working at NCA. And I think a lot of credit should be given to Dravid, who has brought this change. I mean, he's rotating really well, and this I've seen since Asia Cup, even against the match against Pakistan and against Sri Lanka, where he scored at 39 runs, where he played those late cuts. I think this has been a very positive change. Also have seen a change in KL Rahul that he's taking now a lot of singles. Actually, he's rotating the strike very well, and that change has been the last 2 months since he started working at NCA. And I think a lot of credit should be given to Dravid, who has brought this change. I mean, he's rotating really well, and this I've seen since Asia Cup, even against the match against Pakistan and against Sri Lanka, where he scored at 39 runs, where he played those late cuts. I think this has been a very positive change. And bouncing back from 2 for 3 was incredible to see. Hmm. So hats off to Team India. And hopefully the 2 for 3 is now out of the World Cup. Like for us, hopefully this situation never comes because it's always the World Cup and it always we are in this situation. I don't know, somehow we always find, and it could have been 10 for 4 if Virat Yeah. Kohli would have gone out. And I think that catch drop by Mitchell Marsh was so lucky for us, so lucky. I mean, I can't believe it. An Australian fielder actually dropping such an easy catch, and that's It could because have been 20 for 4 and curtains, basically, at that yeah, stage. yeah, 20 for 4 and would have been curtains. We still had, I mean, Jadeja and all respect to them, but I don't think India could have found themselves from that hole, even chasing 200. But the credit, Pratik, what I was telling was should go to our bowlers first of all to restrict Australia to 200. After Yeah. they were 100 for 2 in 25 overs, this was kind of a collapse. Like Australia lost 90 for 8. So what did you make of that collapse? Yeah, absolutely. Like the World Cup is in India, so I don't think any pitch in India can be where 200 is a par score. It cannot be. Even in Lucknow or Chennai, 250 is the score you should be targeting in first innings at least. So Hmm. amazing bowling by India, like restricting Australia, and they had them in the back foot right from the beginning. Maybe the Hmm. Australia beginning was not so bad, but yeah, but even like Smith and Labuschagne partnership, they did not make them go too long. So we picked regular wickets, and Ravi Jadeja was, I think, the best bowler today for us.
थोड़ा बात ईशान और करते हैं। श्रेयस ने बहुत डिसअपॉइंट किया, लाइक रोहित को तो अच्छा बॉल पड़ा था, ऐसा उसका वीकनेस एकदम हम्म, सामने जो बॉल था लो भी रहा हल्का सा, बट हम्म, बट मेरे को ईशान और देवांशु श्रेयस भाई ने की तो बात विकेट बहुत दिए सही अपने। लगी। देवांशु भाई की बात बहुत सही लगी कि मतलब चलो अच्छा है, ये 0 for 3 वाली चीज इस तरह हाँ के हो मैचेस गया, में हो निपट गई। गया। लीग मैच में एक अब वर्ल्ड हाँ कप में एक नहीं होगा। क्योंकि इससे बुरा नहीं हो सकता। और मतलब हाँ, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया के टॉप 3 बैट्समैन 0 पे आउट हुए हैं। या हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। वो तो 2 रन न्यूजीलैंड एक्स्ट्रा सेमीफाइनल से। में आई थिंक द स्कोर्स वर 0-1-1, जीरो वन हाँ वन नहीं, वो हाँ, एक्स्ट्रा के थे ना दोनों लेग बाई, एक दो, वाइड थी एक दो, लेग बाई था। हाँ दोनों एक्स्ट्रा के रन थे। अच्छा, नहीं, जो न्यूजीलैंड अभी वाला जो सेमीफाइनल था उसमें कोहली और राहुल के 1-1 थे, और रोहित का 0 था। I think Pratik 2 for 3. Then there was lot of test match cricket played by KL and Virat, and they kept playing lot of test match cricket. They were really considerate of the टेस्टेड या situation, and I think the statement, as you said, was given when Zampa came on to bowl for his first over, and KL with that beautiful late cut that he has, I think he has one of the best late cut in cricket right now. And I think that over just turned the momentum of the game because KL was, I think, 14 of 31 at that point, and scoring that three quick boundaries actually gave a statement to Zampa, and Australia now could feel that they were missing that extra spinner, which we have been talking about, like not having Ashton Agar, and it felt like Zampa could have come earlier, like you said, they could have come at या he could have come at 11 overs, but they were just trying to get away with Maxwell, few overs of Maxwell just to get away with economically, but that didn't help them in the long run. Ideally, like India bowled three spinners continuously 30 overs, तो उस तरह से कुछ करना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को भी. Yeah, some captaincy mistakes there for sure. I think Pat Cummins is a better test captain and a better test bowler. Hmm. Also, two boundaries that Virat Kohli hit, like two on drives just before that Zampa Yeah, over, that was also pivotal in shifting the momentum towards Team India. So, yeah. yeah, I think both batted just showed the way to other batters. Like, this is how we play ODI cricket, because a lot of teams are forgetting how to play ODI cricket. For example, Sri Lanka yesterday, they maintained a very good run rate, but they could not help but lost too many wickets. And Hmm. so Virat and Rahul were very, very impressive today. Yes. And both Those, missed deserved centuries, actually. yeah. Those two boundaries of Cameron Green were crucial. Actually, it made Virat also confident after that catch drop कि भाई अब ठीक है, मैं संभाल लूंगा थोड़ा, मतलब उस तरह से. But And what another a good thing was Virat did not let KL play a maiden. At least one or two singles were coming even when that tough stage first 10 overs, right? Hmm. So that was good to see that Virat always keeps the intent going. Hmm. Yeah. Yes, Shansh bhai, want to know from you what you thought about the match today. Big win for India. Congratulations, first of all, to Vishnu, Shansh bhai, Pratik. नहीं, ग्रेट विन। मतलब बहुत डर लग गया था। और Hmm. शिखर भाई बोल इंडिया रहे थे लेकिन पहन येलो रखा था। Hmm. और हम डर लग रहा था, लेकिन आज ब्लीड ब्लू पहन। Hmm. आई थिंक और दो मैं पे और तीन के शिखर ही बाद चिल चिल थे। हाँ नहीं नहीं, दो दो पर तीन के बाद तो आई थिंक आई आई हैड वेरी लेस होप्स। और मतलब वो कैच But छूटने but के बाद somehow मुझे मैं लगा कि बोलना आई चाहता थिंक हूँ, वी कैन विन आज इट। पता नहीं why I was so sure कि India will win. मैंने आपको भी पर्सनली मैसेज किया शांश हाँ भाई बीच में, but पता नहीं हाँ somehow after 2 for 3 I was so sure that India will win. And since morning today, only even in my match prediction that I put on YouTube Shorts, I in fact said that India will win. I predicted for an India win. Since morning today, I got a feeling that India will win somehow. I have been getting that feeling, and it's probably has to do with Ashton Agar not playing that, because that is such a big factor in Chennai. मतलब मुझे ऐसा लग ही रहा था वेरी कि बिग फैक्टर। वो उसको मिस करेंगे वो लोग. नहीं, इंडिया के भी Honestly, देखो ना, first 15 overs. इंडिया में भी 5 विकेट तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नहीं लिए। रवि जडेजा प्लस कुलदीप कंबाइंड Hmm. Right. 70 Yeah, रन पे honestly, पांच first विकेट 15 लिए। overs of India chase, I did not believe India will pull this off because ball was doing a lot, and like 2 for 3, 5 for 3, very Hmm. scary scores. हाँ So नहीं, और मतलब थोड़ा सा क्या इररेस्पॉन्सिबल थे वो शुरू के 2 ओवर्स में, स्पेशली मतलब अय्यर का तो शॉट, मतलब मैं माफी नहीं कर सकता उसको।
बट उसके Yeah, I बाद mean, he wants to play positive. That's understandable, but you cannot do the same way when you're 2 for 2. At least 2-4 ओवर तो हाँ देखना था. बट वो ये खुद चेस मास्टर और उसका रहना ऑल्सो हेल्प केएल अ लॉट, जो वो बार बार सिंगल डबल लेता रहा करता रहा। आई थिंक वो कोहली का होना ना वहां पे, दैट ऑल्सो वाज अ आइसिंग ऑन द केक टाइप ऑफ थिंग, कि उसके केएल भी वो उस अंदाज में खेलता। और शुरू में केएल वाज पॉजिटिव क्योंकि उसको पता था कि यार कोहली है ही सही। और वो मतलब ऑब्वियसली दैट कैच ड्रॉप, I'm मेरे को स्टीव वॉ वाला याद आने लग गया कि कोहली यही कहेगा कि मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है, अब तो ये मैं ही जीतूंगा, अब तो कैच भी छूट गया। I'm still surprised यार हेजलवुड को ओडीआई में इतना सक्सेस कैसे मिल जाता है, सब लेंथ बॉल्स डालता है, people smash those balls in these days, but he's a good bowler in this format. And विराट कोहली ने उसको एक फ्रंट फुट पे आके शॉट मारा था स्ट्रेट ड्राइव, that was I the am most surprised at beautiful how shot of the surprised match. you can get from such obvious facts. By Hazelwood is a class bowler across all Class formats. मतलब, No, but I think Shikhar, even you said like maybe Nathan Ellis can be tried because you were saying like already Cummins and Stark. I mean, if we had to pick one bowler out of the three, we were like, okay, yeah, maybe Hazelwood can sit out, but he has proved his worth. He's even better than Cummins and Stark. yeah, Maybe at least Cummins, not Stark. Stark has a Yorker, but Cummins could have taken Kohli if that catch was taken by. So that was, I think, Cummins' wicket, right? I like how you guys compared that to 2003 World Cup shot from Sachin. And And 2015 unfortunately, that catch was taken. and 2015 semi-final also. That was a much higher bouncer. 2015 का नहीं तो मैं भी उसका वीडियो देख रहा था। आई थिंक इसमें ना कैरी जो तेज भाग के आया ना, वो अचानक में एंड में ना उससे घबरा गया। वो उसको ये लगने लग गया कि मैं घुटने से टकरा जाऊंगा। अभी मैंने उसके 3-4 वीडियोस देखे तो मतलब डर गया वो लास्ट में कि यार मैं टकराने वाला हूँ कैरी से। हाँ, क्योंकि मतलब उसका या तो हाथ भी नहीं लगा कैच, उस कैच में, हाँ मतलब उसके हाथ के बीच से निकल गया वो कैच। या मतलब उसने बिल्कुल देखा ही नहीं बॉल को, बिकॉज कैरी भागते हुए आ रहा था। हाँ, या तो कैरी को भागना ही नहीं चाहिए था या फिर उसको कैच ही लेना चाहिए था कि भैया मैं पकड़ लेता हूँ और फिर। उसके It बाद was weird, ऑस्ट्रेलिया like पूरा they both गिल्ट ट्रिप forgot में to था। call for the catch. They both forgot to call for the catch. Yeah, they were just running in that direction. और Actually, उस कैरी के ही कैच होना चाहिए था ना वैसे देखा जाए तो, because wicket keeping gloves are safer than. बट कैरी वाज टू फार, आई फेल्ट, मतलब कि ही कुड Hmm. हैव कॉट इट बट ही वाज टू फार, आई थिंक। मतलब डाइविंग कैच होता शायद उसके लिए, मे बी इट वुड हैव बीन, इट वाज नॉट अ सिंपल ग्रैब, लाइक इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेच catch, maybe It something was like such that. a huge moment in the game, but you see their reactions were so simple. Like Carey just said, "Hey, it's okay." But I was feeling India या पाकिस्तानी फील्डर होता तो फाइट ही हो जाता शायद आपस नहीं में. नहीं, आई थिंक दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन देयर कूल बिकॉज एट दैट टाइम दे वर एट एन एडवांटेज पोजीशन, बट actually psychologically in the inside they were destroyed. They knew that they have done a Yes. big blunder. It was like Abdul Razak dropping Sachin Tendulkar in 2003 World Cup, I think. It was उसके like बाद Gibbs dropping in that 99 semi-final. Yeah. यस हाँ, स्टीव वॉ। सो इट वाज लाइक दैट कि इंटरनली, बिकॉज उसके बाद उनका लेंथ एंड द प्रेशर टोटली चेंज्ड, मतलब कि उसके बाद बॉलिंग उतनी अच्छी हुई नहीं जितना दे वर वेवर्ड। और फिर स्पिनर्स के साथ तो दे मेड अ बिग ब्लंडर कि दे ब्रॉट मैक्सवेल, पहले मैक्सवेल आ गया, 3-4 ओवर मैक्सवेल डाल रहा है, तो उसमें तो वो नहीं कर सकते। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए यार अब रहा टफ है क्योंकि अगले उनके 2 मैच लखनऊ में है। और अगर यही उनका स्पिन अटैक होने वाला है तो मतलब बहुत मैं तो प्रॉब्लम भूल हो ही गया था जाएगी। यार, मैं सोचा क्योंकि था अगर क्लासन अनफिट बहुत है, बट बढ़िया मैं खेलता भूल है ही गया स्पिन था को उनके पास अभी। घर पे लायन बैठा है, वहां पे उसको बुला लाते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड कप है यार। वो भी फिट नहीं होगा यार, वो इंजर्ड है ना। नहीं नहीं, वो फिट है। उसने एक मैसेज भी किया है अपने, मतलब कि ये तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा वीकनेस है एक्चुअली, सेकंड स्पिनर नहीं होना। यार जब मुझे से याद आ रहा है कि ये दुबई में लेके गए थे शायद लायन को T20 वर्ल्ड कप के लिए। मुझे हाँ, T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं, बट ही वाज देयर इन लास्ट वर्ल्ड कप, लास्ट ओडीआई लास्ट वर्ल्ड कप वर्ल्ड ही कप वाज देयर। I remember he एंड was called on for some of the white ball thing, yeah. तो इस पे क्यों नहीं लेके आए when they don't have those resources? और you guys said at least कूनहेमन को या किसी और कूनेमन को भी ट्रस्ट कर वुड सकते हैव थे। बीन मोर मर्फी को यूजफुल ला क्योंकि सकते थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल जाता ना उनको। ऑलरेडी उनके पास मैक्सवेल और ट्रेविस हेड फिर भी है ऑफ स्पिन के बराबर, मतलब ऑब्वियसली वो उतने अच्छे नहीं है, बट फिर भी लेफ्ट आर्म उनको एक वैरायटी मिल जाता है, इसीलिए कूनेमन एक्चुअली वाज मोर प्रेफर्ड। ट्रेविस हेड को अरे तो एक बैटिंग क्वेश्चन में है, बहुत मिस कर रहे हैं। पता नहीं आप लोग बात किए कि ब्रिंगिंग Zampa that late, was it a mistake? Oh yeah, हाँ definitely, yeah. ऑब्वियसली Absolutely, ह्यूज मिस्टेक। Big mistake, पता absolutely. big नहीं यार mistake. उसका माइंडसेट क्या चल रहा था। मैक्सवेल के 3 ओवर हो गए और ये अब तक Because नहीं आया। these two had already played together for 15 overs by the time Zampa came.
So And very Vishnu, the stupid. reason for that is not having the second spinner, because they just wanted to get away with Maxwell. They just wanted 4 overs of Maxwell for 15 runs. Or निपटा दो. That's why I think New Zealand can become more strong if they also play Sodhi. Sodhi, Santner and Rachin, all three should play in most of the matches. But Rachin तो proper spinner है, फिर भी मतलब ठीक है वो. Yeah. अरे और ग्लेन फिलिप्स भी यार उनके पास, वो भी तो विकेट टेकर है भैया. Yeah, actually Glenn भाई Phillips आज and अश्विन Iftikhar खेलना तो चाचू मास्टर बहुत स्ट्रोक विकेट्स था लेते यार. हैं. अश्विन को भाई खिलाना उसने और जो वो रूट और selection. किसको लिया था उसने, जो रूट का और एक और, हाँ, दोनों अच्छे विकेट्स लिए तो उसने. मतलब जो रूट और बटलर, आई थिंक. नहीं, बटलर को तो मैट हेनरी ने लिया था. मैट हेनरी ने किया था. हाँ हाँ, लेकिन अच्छे विकेट्स लिए. मोइन अली, शायद मोइन अली को लिया था उसने शायद. हाँ. Yeah, but अच्छा, अभी इंडिया के बारे में. on the other hand, played perfect cricket after the first 10 challenging overs. They scored only 27, but then they made 53, 40 and 62. So that was very good. No, I remember 100 of 150 था पार्टनरशिप विराट और केएल का. तो 67 strike rate is very decent when you are chasing 200, तो you don't need more than that. And और केएल तो भाई he's a master. मतलब विराट तो रन चेजेस का मास्टर है ओवरऑल, बट केएल इज द अल्टीमेट मास्टर ऑफ लो स्कोरिंग चेजेस. दैट वी हैव टू एक्सेप्ट. न्यू टाइटल, लास्ट में टाइटल उसको गिवन 4 बाय चाहिए था. शिखर. भाई ये वीडियो का he got टाइटल shocked. होगा आज. ही गॉट शॉक. वो खुद ही बोला यार कि मैं कैलकुलेट कर लिया था, एक चौका और एक छक्का चाहिए. और उसका लक नहीं, और ये इतना शॉट बढ़िया वैसे रहता वो है कि बहुत वो अच्छा छक्का ही खेलता है. चलेगा. भाई वो इतना अच्छा टाइम किया उस बॉल को. भाई वैसा थोड़ा हाँ. आईपीएल या टी20 वर्ल्ड कप में खेल लेता. कैसा उसने वो कवर्स के ऊपर 6 मारा, भाई मैं क्या शॉक हो शॉट गया. था यार. वो मतलब भी कमिंस कमिंस को. के साथ ऐसा शॉट मारा, पहले से पूरा मन में सोच लिया था कमिंस को पेलूंगा. 4 and 6. नहीं तो उसमें दम तो है, अगर वो अपनी ठान लेता है ना, तो देखो उसने 14 बॉल में 50 बनाए हुए. भाई हम तो मतलब हमेशा वो एग्जांपल देते हैं. वो तो अभी भी मैं बिलीव नहीं Another कर good पाता. thing is कि जब विराट कोहली आउट हुआ तो हार्दिक पांड्या ने ऐसा नहीं सोचा कि चलो थोड़े डॉट्स खेल लूंगा. He was showing good intent. These guys made 34 runs in just 22 balls, which gave India some NRR boost also. Our net run rate is 0.8 बट now. So बट बहुत लोग अभी हार्दिक पांड्या को गाली दे रहे हैं कि उसने क्यों छक्का मारा, नहीं तो केएल का सेंचुरी हो जाता. हाँ वो अरे एक यार, मैक्सवेल को क्योंकि देयर वाज सो मच टाइम इन द गेम. बट हाँ, नेट रन रेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो या, विष्णु मैन, व्हाट डू यू हैव टू से? व्हाट अ ग्रेट विन फॉर इंडिया. श्रेयांश भाई, आप क्या बोल रहे हो? और कुछ बोलो आज केएल राहुल के बारे में. नहीं, कुछ बोल बहुत दो. बढ़िया. नहीं, आज केएल राहुल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. मतलब ही हैज साइलेंस्ड अस विद हिज नहीं, अच्छा कूलनेस, बोल दो. कामनेस. अच्छा बोल दो केएल राहुल एंड के बारे में. जो उसने बहुत जबरदस्त आज आपका म्यूट हो गया है श्रेयांश भाई. जो उसने आज बहुत जबरदस्त कैच भी लिया है एक, मानस लाबुशेन का. वो बिल्कुल वैसा ही कैच था जिसमें धोनी ने बोला था कि मुझे बेस्ट कैच का अवार्ड मिलना चाहिए था. इट वाज दैट टाइप ऑफ अ कैच जो उसने लिया. और ही वाज सेइंग कि भाई 50 ओवर कीपिंग के बाद ही डिडंट एक्सपेक्टेड कि 2 ओवर बाद उसकी बैटिंग आ जाएगी. तो उसने कोल्ड शावर लिया एंड ही वांटेड टू रेस्ट, बट 2 ओवर के अंदर ही उसकी बैटिंग भी आ गई. तो जो 17 पे 5 वाला किस्सा हुआ था कपिल देव के साथ व्हेन ही वाज इन द शावर, ऑलमोस्ट दैट हैपेंड. क्योंकि इमेजिन ही नहीं करा था उसने कि यार सेकंड ओवर में ही विल कम टू बैट. बट ही प्लेड एक्सेप्शनली वेल. मतलब अगर आप उसकी पूरी इनिंग्स का अगर चार्ट देखेंगे अपन, चांसलेस नॉक था केएल राहुल का. और जो जैम्पा के ओवर में जो उसने 3 बाउंड्रीज मारी, वो जो 2 कट शॉट्स थे, अमेजिंग शॉट्स, सुपर कट शॉट्स थे वो. तो वो एक मतलब बहुत ही मोमेंटम शिफ्टिंग ओवर था. ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया डिड मिस्टेक बाय ब्रिंगिंग जैम्पा लेट, बट उसके बाद भी जो एग्जीक्यूशन था उस ओवर में 13 रन मारने के बाद, आई थिंक उसके बाद जैम्पा की लाइन लेंथ बिगड़ चुकी थी. जैम्पा प्रेशर पे आ गया, एंड चेंज किया उसने. और केएल राहुल के पास ये शॉट है, उसने वेल्ला लगे को भी मारा था उस दिन जब श्रीलंका के अगेंस्ट उसने 40 मारा था, which was 39 of 44. 39 of 44 जो मारा था, उसमें भी उसने वेल्ला लगे को 2 बैक टू बैक ऐसे ही मारा था शॉट. और वो थोड़ा रिस्की शॉट होता है कभी कभी. उसमें क्या होता है कि आपका बोल्ड होने का चांस होता है या फिर एज लगने का चांस होता है, बट ही एक्चुअली प्लेज इट वेरी वेल. मतलब कि
That is Actually, one I of found the out today he plays this shot so well. नहीं I know his ऐसा other shots are good, but but yeah. but he looks so out of place in T20 cricket. But ऐसे chases में जो low scoring chases में, and we are seeing this probably fourth time in the year. एक उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले भी किया था, और एक श्रीलंका के अगेंस्ट किया था, और एक और एक उसने अभी बांग्लादेश। किया रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अभी किया. मतलब उसने 4 बार ऐसा मतलब 50s मारे हैं चेज में, व्हेन टीम वाज लिटिल बिट शेकी, मतलब लो चेजेस में. तो इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा उसको कि भाई लो स्कोरिंग चेजेस का अपने पास एक बैट्समैन बहुत अच्छा है. एंड ऑब्वियसली विराट कोहली ऑल्सो गेट्स लॉट ऑफ क्रेडिट, बट थोड़ा उससे क्रेडिट ले लेंगे लोग क्योंकि वो ड्रॉप हुआ था, कि उसका कैच ड्रॉप हुआ था. बट केएल राहुल का फ्लॉलेस, नहीं एंड नहीं, इट वाज लेकिन क्या था ना, कैच तो ड्रॉप हुआ, लेकिन अगर उस टाइम वो आउट हो जाता, 20 पे 4 अगर हो जाता, तो हम हाँ नहीं जीत पाते, मतलब फिर 200 भी। हाँ. हाँ, तो 20 पे 4 के बाद ना मेंटली, एक्चुअली में कोहली का वहां होना आफ्टर दैट ड्रॉप, वो मेंटली हम्म तो बहुत सेटिस्फाइंग रहता ही है यार, कि जब तक कोहली हम्म है सामने वाली टीम हमेशा डरती है। हम्म. इट वाज मतलब नो उसका वहां मिस्टेक्स खड़े क्रिकेट, रहना। टोटली नो मिस्टेक्स क्रिकेट. कोई मिस्टेक्स नहीं किया इन्होंने. वो ड्रॉप के बाद सीधा सीधा खेला एकदम. कोई रिस्की uh, सिंगल नहीं लिया। कोई But रिस्की it's a very सिंगल big नहीं thing लिया यार. कुछ नहीं. 2.5 या 3 hours का लंबी partnership चली है without हम्म any risk taken in such a difficult conditions. हम्म. Yeah, and scoring rate was also very good. I'm still saying अगर India first batting करता 275 मारता, which would have been a very good score here. Yeah. So, but yeah, tell me more guys about first innings because I didn't see that one. So maybe Vishnu and you guys Yeah, I I can have go think also first not innings. we seen. should I was credit. in the car, so I think I watched Vishnu. it. हाँ. I I also watched watched. it. Yeah, Vishnu, you Bumrah's go ahead. first 2 overs were next level. That's why Hmm. we needed Bumrah. He Hmm. was excellent with Marsh. Marsh didn't had a chance to hit him. Hmm. Every ball it was a dot, and finally he had to nick it because he couldn't resist. Marsh Hmm. to Marsh hai na, so he wanted to Hmm. score runs. But that's why Bumrah is very important in the first overs, man. Seriously. Yeah, Shikha. एक्चुअली नाउ पता है, एक बात बताऊं, ये मैच जो था ना वो 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बहुत सिमिलर था. वहां पे भी बुमराह ने मार्टिन गप्टिल को ऐसे ही आउट किया था. मतलब कि फर्स्ट में ही गॉट मार्टिन गप्टिल आउट. ही वाज बॉलिंग वेरी कंसिस्टेंट. फिर भुवनेश्वर भी उसमें अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इसमें भी सिराज ने अच्छी बॉलिंग किया. ओनली बिकॉज ऑफ द हीट एक्चुअली वो चेंज करना पड़ा बॉलिंग, और कुलदीप यादव को लाना पड़ा. Yeah. बट इवन ओनली हार्दिक पांड्या, आई थिंक ही वाज द वन हु वाज गिविंग अवे लॉट ऑफ रन्स. तो उस पे थोड़ा प्रेशर बनाया था डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने. वो पार्टनरशिप एक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा था, डेविड वार्नर और स्टीव हाँ. स्मिथ का. विष्णु, इफ यू सॉ दैट. एक्चुअली टॉस जीतने के बाद आई वाज वेरी नर्वस यार. नर्वस इन द सेंस ये लोग ना 260 270 मार दिए तो वो पिच पे आई थॉट कि वी वुडंट चेस. इट वुड बी वेरी टफ फॉर अस टू डू इट. So we had to start well, and then I couldn't understand middle overs में ये लोगों का क्या फंडा था. Labu and Smith were completely blocking. They are now couldn't even take singles here. I couldn't believe या. why. What is their game plan? एंड I स्ट्राइक mean, रोटेशन see, बहुत पुअर था. मतलब ऑस्ट्रेलिया से आप जनरली नहीं देखते हो इतना पुअर स्ट्राइक रोटेशन, और पूरा लैक ऑफ इंटेंट. मतलब yeah, 20 to 30 overs में they scored 32 or 34 runs. या. Ridiculous in those overs here. That's where you start gaining नहीं, momentum, right? और उसमें भी आई थिंक वो एक तो छक्का और चौका लास्ट में कमिंस का था, तो अगर वो हटा दो आप 10 रन 40th ओवर की लास्ट 2 बॉल वाले, तो हाँ. मतलब आपके 30 रन भी नहीं है, 25-26 रन है 10 ओवर नहीं, में। आई थिंक 110 पे 2 था और 140 फॉर 7 हो गया था, राइट? तो वो 7 30 रन्स 7 पे हाँ। 30 रन्स पे 5 विकेट इज अ बिग कोलैप्स. मतलब कि देवांशु भाई का जो थ्योरी है, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज कोलैप्सेस. आई थिंक दैट इज ट्रू. मतलब वो एशेज से ही हम लोग देख रहे हैं, और पहले भी देखा है हमने. और ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स तो एक बहुत ट्रेंड बनते जा रहा है एक्चुअली क्रिकेट में. एंड दैट मुझे वाज पता था शॉकिंग. स्मिथ को आउट किया तो इनकमिंग बैट्समैन कांट सर्वाइव इन दोस पिचेस. तो मुझे लगा स्मिथ वाज वेरी की. एंड दैट्स व्हेन जड्डू वो विकेट लेने के बाद ना इट ओपनड अप. द गेम कंप्लीटली शिफ्टेड इन आवर गेयर. एंड देन जड्डू का स्पेल वाज नेक्स्ट लेवल. ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट. एंड देन कुलदीप एंड अश्विन स्टार्टिंग ओवर्स में आई फेल्ट कि वो लोग इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बॉलिंग डाले. अश्विन वाज
स्ट्रेइंग डाउन टू लेग साइड एवरी ओवर में 2-3 बॉल लेग साइड ही जा रहे थे एक्चुअली स्मिथ और क्या हो रहा था वार्नर। ना, दे वर ट्राइंग टू बॉल क्विक, मतलब जो स्पिनर्स थे ना, क्योंकि दे न्यू, जडेजा ने पोस्ट फर्स्ट इनिंग्स बोला कि विकेट देखते ही हमें समझ आ गया था कि बॉल टर्न होगी, बॉल घूमेगी, तो हम ना एक्चुअली फास्ट डाल रहे थे ताकि हमें फास्ट टर्न मिले, क्योंकि नहीं तो स्लो टर्न जो मिलता है तो बैट्समैन एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसीलिए हम फास्ट टर्न, और वही हुआ स्मिथ का डिसमिसल अगर आप देखोगे तो वो बॉल से वो सरप्राइज हो गया, मतलब कि इट्स जस्ट लाइक टेस्ट मैच में जैसे जडेजा आउट करता है स्मिथ को, इट वाज लाइक दैट, तो या फिनोमिनल फिनोमिनल But yeah, बॉलिंग I'm बाय रविंद्र surprised. जडेजा. Like Australia का run rate बस 4 रहा है इस मैच में because they batted till 50th over. And या usually you play like 3 run and over in for one phase like 10 over phase. But वो लोग throughout ऐसा खेल रहे थे. That is very शायद surprising. कि मार्श को जल्दी निकालने के बाद ये लोगों का माइंडसेट फ्रीज हो गया, दे डिडंट नो व्हाट्स द गुड स्कोर फॉर देम, सो Yeah, actually you're right. अगर मार्च जल्दी जाता है तो all three struggle with their strike rates. Warner, Smith and Labuschagne. भाई 100, कौन सी ऑस्ट्रेलियन टीम 100 रन बनाती है 25 ओवर में? भाई हेडन और गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग भी ऐसा नहीं करते थे, मतलब वो लोग भी 15 या 20 ओवर में 100 बना लेते थे, 25 ओवर में अगर तुम 100 रन बना रहे हो, ठीक है भाई, ये तो कोलैप्स छोड़ो, तुम कोलैप्स के मैं वही पहले बोल रहा हूँ, क्या लास्ट 2 किया? डेकेड्स में कभी ऑस्ट्रेलिया ने 4 की रन रेट से बैटिंग नहीं करी है 50 ओवर्स में. वही वही. भूल गए ना 50 ओवर्स कम खेलते हैं। और मतलब बट 2 ही विकेट थे के बाद ऐसा खेलना। आई थिंक शिखर ने अपने पर्सनल ग्रुप में लिखा भी था कि ये इनके लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगा अगर स्मिथ आउट हो जाता है तो, और वही हुआ हाँ बेसिक। वही हुआ स्मिथ एक्चुअली. एंड और वी कुड तुरंत सी collapse। दैट कमिंग, क्योंकि हाँ, they उससे needed one पहले of them to play an 80 innings knock तो 225 तक पहुंच जाते थे, बट दोनों 50 नहीं बना पाए, that's why they score नहीं बन पाया. स्मिथ नहीं आउट मतलब होने से पहले देयर वर 3 I don't ओवर्स। see any position from where they could have actually accelerated, मतलब कि वो नेथन कुल्टरनाइल वाला जो नॉक था ना, इट वुड हैव नीडेड दैट काइंड ऑफ इनिंग्स टू सेव देम फ्रॉम देयर, मतलब कि इस तरह का बैटिंग हो रहा था, दे वर जस्ट डैम पुअर, मतलब कि इट वाज नो इंटेंट एंड इट वाज सरप्राइजिंग कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नो मैटर द पिच. पिच तो बाद में खराब हुई, 27th ओवर ऑनवर्ड्स एक्चुअली पिच खराब हुई है, क्योंकि ओल्ड बॉल वाज टर्निंग मोर ऑन द पिच, सो आई वाज एक्चुअली फियरिंग कि इंडिया यार शुरू में अच्छा फास्ट खेल दे, क्योंकि 27th ओवर के बाद पिच थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. रोहित ट्राई कर रहा था कि ही कुड स्टार्ट फास्टर ये बट देखो ना, बट जडेजा के पहले में 8 रन आए थे और उसके बाद ये फिनिश विद 28 फॉर 3 इन 10 ओवर्स। मतलब अभी 9 वो ओवर में उसने 9 सिर्फ 20 रन आने के बाद ना ये लोग डिडंट अटैक हिम, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट 2 हम्म. ओवर्स उसने एक रन दिया था शायद, दैट्स व्हेन प्रेशर बिल्ड हुआ। नेक्स्ट ओवर कुलदीप आया और 2-3 रन दिया, देन नेक्स्ट ओवर में इसने निकाला स्मिथ को। ऐसे साइमल्टेनियसली 3-4 ओवर्स में पूरा ब्लॉक हो गए वो लोग। और इंडिया ऑन हाँ. मतलब तीनों के जीरो नहीं है ना, इसमें तो तीनों ही जीरो थे। 0-0. हाँ अच्छा, अभी क्या आपको लगता है इंडियन टीम का कोई आपको वीकनेस, या अभी ईशान किशन के ओपनिंग पे मतलब क्या लग रहा है कि वो भाई मतलब पाकिस्तान के नहीं अगेंस्ट यार, इफ विल ओपन राइट? भाई यार वो तो एक बड़ा झटका है ही। मतलब शुभमन गिल हम्म, होना चाहिए था, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट एक्चुअली अब अभी डेंगू हो वो गया है सिमिलैरिटी की फर्स्ट बात मैच। कर रहे थे ना कि ये मैच सिमिलर था उस सेमीफाइनल के. अगर 24-4 हो जाते ना तो बहुत सिमिलर होता, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते 2-3 बैट्समैन और 170-180 पे अपन ऑल आउट हो जाते. हाँ बहुत सिमिलर था, वही तो तो मैं बता रहा हूँ, मतलब इनफैक्ट उसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी खेला ना, वो एग्जैक्टली न्यूजीलैंड जैसा मतलब खेला है उन्होंने, कि शुरू में हाँ मतलब उन्होंने थोड़ा मारना शुरू में विकेट्स गिरे, फिर थोड़ा मारना शुरू किया जैसे रॉस टेलर ने मारा था, तो वो थोड़ा पैटर्न सिमिलर था, मतलब उस तरह से, और ऑब्वियसली पार्टनरशिप अभी जैसे हुआ केल, तो वहां पे धोनी और that जडेजा का match, if you remember, I think India were only around 100 in 30 overs. धोनी और हाँ. जडेजा बहुत बहुत स्लो पिक कर रहे थे. राइट Yeah. राइट राइट. man, is it exciting times that we beat big Australia in our first game? Yeah, Yeah. great win, and beating Australia back to back for the first time in World Cup, and KL Rahul scoring 97, which is the third highest score against Australia in World Cup. So this is a great achievement for us. And although KL Rahul deserves the man of the match, I think my man of the match is Ravindra Jadeja. जस्ट बिकॉज आई थिंक अगर ये 250 का चेज होता तो ये इतना इजी नहीं होता, लास्ट में कोहली भी आउट हो गया था ऑब्वियसली, और अगर वहां पे और
75 हमें चेज करना होता 69 बॉल्स में, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता. तो ऑस्ट्रेलिया वेयर डेफिनेटली 50 बिलो पार. आई स्टिल फील ऑस्ट्रेलिया वेयर 50 बिलो पार. एंड अगर पार स्कोर चेज में 2 for 3 हो गए आप, तो मतलब कि आगे टूर्नामेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर पार स्कोर पे अगर आप 2 for 3 हो, तो it will be very difficult to chase. It will be very, very, very difficult. No, I think it was correct because KL Rahul still played a chanceless knock. तो Hmm. अभी जिस तरह से वो बैटिंग किया है, it seems like 250 भी चेज हो जाता. Even though it would have been, the pressure would हाँ, have been नहीं more, वो but जीत गए इसलिए लग रहा है भाई, अगर नहीं जीते होते ना तो नहीं लगता बिल्कुल भी। नहीं नहीं, वो yeah, इसीलिए today लग what रहा है good thing क्योंकि happened with लास्ट में India, उसने they could afford to score no runs in the first 10 overs. But अगर 250 chase होता तो they would have had to force, they were forced to look for some extra boundaries, and then they might have lost more wickets. या But they today, would have that extra yeah, pressure is created भाई. रन्स का जो माउंटेन लग जाता है फर्स्ट बैटिंग के required लिए, run rate का, yes. वो इनफैक्ट पैट कमिंस सेड कि आई डोंट रिग्रेट द टॉस, मतलब टॉस डिसीजन, मतलब कि वो बोला बस वी आर Actually, we 50 also बिलो wanted पार. to bat first, right? हाँ, तो he wanted, everyone नहीं तो wanted इनके to साथ bat एक प्रॉब्लम है ना, एक आप एक बड़ी प्रॉब्लम देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आगे अच्छे बैटिंग ट्रैक्स में आएगी, कि अगर मार्श रन नहीं बनाता है first. तो उनके नंबर 3 और नंबर 4 दोनों जो है ना वो स्लो प्लेयर्स हैं, हाँ, मतलब वो वो slow. 120 वाले हैं ही नहीं, तो वहां हाँ, उनका पूरा मोमेंटम ही रुक जाएगा अगर मार्श रन नहीं बनाएगा तो दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन मार्श टू गिव देम अ 30 बॉल 50 वाला स्टार्ट, या एक्चुअली और ट्रेविस और हेड, मार्श वार्नर इनकंसिस्टेंट आती है। वार्नर तो लॉटरी है, वो मारता है नहीं मारता है उसको ही नहीं पता, तो नहीं दे yeah. मार्श कांट तो डिपेंड ऑन आप मान के चलो, वार्नर. मतलब 10 में 2 मैच चलने वाला प्लेयर है वो, हाँ. उसका एवरेज 25-26 टाइप ही है, मतलब इज नॉट। दिस इज वेयर दे आर मिसिंग ट्रेविस हेड. ट्रेविस हेड एक्चुअली वो कंसिस्टेंटली फास्ट स्टार्ट्स देता था, तो उसको काफी हाँ ग्रीन भी मिस थोड़ा कर टाइम रहे ले हैं. लेता है कभी कभी बिगिनिंग में, तो ये तीनों साथ उसको में ऊपर आते लाते हैं ही नहीं ना, like, उसको तो ग्रीन को तो इनको ऊपर ही लाना चाहिए, जैसे पर ग्रीन आईपीएल में भी उसने नहीं, सारी कैरी भी अच्छी टाइम बैटिंग लेता है, ऊपर ही ग्रीन को करी है। ऊपर लाना चाहिए, यस, बट कैरी भी टाइम हम्म. लेता है, बोल रहा था. ग्रीन आज भी 10-12 बॉल में 2 रन बना के मतलब शायद स्लो मुझे ही तो खेल अभी भी रहा था। लगता है हेड को रिप्लेस करने के लिए बेस्ट है कि वार्नर एंड ग्रीन शुड ओपन एंड मिच मार्श शुड कम वन डाउन, बट वो वन ऐसे डाउन, ट्राई नहीं हाँ कर रहे. ग्रीन ग्रीन नीचे वेस्ट है एक्चुअली में, क्योंकि वो हम्म. ऐसा नहीं है कि 25 बॉल में 70 रन मार देगा, लेकिन हाँ वो पावर प्ले का नहीं, अभी बढ़िया फायदा उठा लेता है। एक बात, हेड हेड फिट हुआ तो किसको निकालेंगे? लाबो को निकालना पड़ेगा यार, वो बकवास है या ये वर्ल्ड कप में, उसको क्या निकालेंगे क्या खेल रहा था वो, उसको निकालना बिकॉज कुछ पड़ेगा. इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है लबू, तो उसी को हेड के निकालेंगे. बाद मार्श को भेजो, इट्स अ वेरी नाइस बैटिंग लाइनअप हो जाएगा फिर. या नहीं, हम्म. अभी भी बहुत सही बोला है प्रतीक ने कि ग्रीन एंड वार्नर कैन ओपन एंड मार्श एट 3, और फिर 4 ग्रीन ने स्मिथ। T20 में ओपन करके बहुत अच्छे रन भी बनाए थे जस्ट बिफोर द वर्ल्ड और कप, हाँ फिर हाँ, उसको तब. ही कैन ऑल्सो मुंबई ओपन. मुंबई इंडियंस में दे भी अच्छा हैव. खेला है ना, हम्म. उसको आप वैसी बॉलिंग तो दो। हम्म. राइट. और और इंडिया के कोई बारे में मैचेस का कुछ बात बोलना करना है? है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफी बात हो गई. इंडिया के बारे में एवरीथिंग लुक्स गुड मैन, नाउ. बुमराह आने के बाद वी आर कंप्लीटली डिफरेंट इन द स्टार्टिंग, मैन, सीरियसली. टुडे आई इतना. टोल्ड इनफैक्ट इन द प्रीव्यू गाइस, अगर आपने मेरा वर्ल्ड कप प्रीव्यू देखा तो मुझे लगता है मैंने बोला कि बॉलिंग अटैक हमारी जो है ना, वो टॉप 2 ऑफ द वर्ल्ड में है. इवन दो हमारी बैटिंग अटैक शायद थर्ड या फोर्थ है, या हमारी बॉलिंग अटैक एक्चुअली टॉप 2 ऑफ द वर्ल्ड में है. और वो इंश्योर करेगी कि हमारे बैटिंग पे प्रेशर ना आए. और ये सारे सक्सेसफुल टीम्स करती थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया करती थी, पाकिस्तान भी जब 90s में थी तो करंटली वो तो भी यही बेस्ट ही है ना करते थे. अपनी बॉलिंग अटैक इंडिया हाँ, कंडीशंस के हिसाब से, तो बेस्ट ही है इनफैक्ट. हाँ, बेस्ट ही है. एग्जैक्टली बेस्ट है हमारी आज बॉलिंग तो अटैक. दिखा दिए बैटिंग माइट भाई, बी. आज तो दिखा दिया. ऑस्ट्रेलिया प्लान या की दे विल स्कोर अराउंड 250 260, या बट रिस्ट्रिक्टिंग देम टू अंडर 200, तो इट्स बॉलिंग परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल था. आई थिंक एंड एक्सेप्ट एंड इफ यू गॉट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट टुडे, आई एम कॉन्फिडेंट विल गेट मोस्ट ऑफ द टीम्स ऑल आउट दिस वर्ल्ड कप. आई थिंक एक्सेप्ट इंग्लिश कंडीशन वेयर आवर बॉलर्स डोंट आर नॉट एबल टू स्विंग द बॉल, क्योंकि अभी हमारे पास या कोई स्विंग बॉलर है नहीं. तो या वो कंडीशंस को छोड़ के बाकी सारे कंडीशंस में इंडियन बॉलिंग अटैक इज टू गुड. बस या एंड वो ऑल्सो एक. सिराज उसको अच्छा अच्छा ओपनिंग स्पेल देता है यार, and बुमराह को. and and one reason is Shami is not playing. That is one of the main factors कि our bowling is good. Sorry, Pratik. नहीं क्योंकि सिराज भी रन नहीं देता है, सिराज हाँ, इज हाँ, वही बॉलिंग तो. वेरी गुड यार। नहीं, आई स्टिल फील शामी कैन टेक मोर विकेट्स इन फर्स्ट अबे स्पेल देन ये बुमराह, नहीं बट बट वो शामी, रन दे देता है ना। शामी साला आज 280 चेस करा था शामी. 280. वो रन दे देता है यार, रन दे देता है वो रन क्या देता है, है यार, वही तो प्रॉब्लम है प्रतीक उसका. अफगानिस्तान फ्लेवर में चल जाता है कि नवीन उलग और ये सब पड़वाएंगे खूब सारे रन। भाई आई एम सो एक्साइटेड. मैं छुट्टी लेने का सोच रहा हूँ यार, वेडनेसडे इंडिया अफगानिस्तान मैच है दिल्ली में.
तो यू आर सपोर्टिंग अफगानिस्तान ना दैट डे? But I'm supporting Virat in Naveen versus Virat battle. Naveen versus Virat at Virat's home ground. That will be the most Oh, interesting thing. भाई Yeah. नवीन will be shitting. भाई I वैसे don't भी see विराट के them सामने any उसकी chance. I औकात don't नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Hmm. मतलब ठीक है भाई, Yeah. वो बहुत अच्छा बॉलर है, बट विराट इज अरे भाई छोड़ो वे यार, वे साला अबव हिम। रिटायर होने वाले प्लेयर के बारे में क्या बात क्या करोगे? साला भाई, 23 में रिटायर हो रहा है। कौन क्या रिटायर क्या होता है लाइफ यार? प्लान है नवीन का? 23 में रिटायर होना चाहता है वो ओडीआई से। भाई ये झूठी एज दिखाते होंगे, हम्म, मतलब ये भी हो सकता है कई, मतलब इस तरह की कंट्रीज में हाँ, आपको राशिद लगता खान ही का नहीं तो है कि लगता है। हाँ, मतलब वो हम्म, कितने सालों से खेल रहा है और अभी 25 ही साल का हम्म। है। सच में यार। मतलब बट भाई विराट को बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा आज के इनिंग्स के बाद। मतलब उसको नहीं, लग दिस रहा कैन होगा। बी द वर्ल्ड कप जहाँ पे विराट कैन बी लीडिंग स्कोरर, जो हमने किसी ने भाई नेक्स्ट मैच में हम प्रेडिक्ट लोग भी भी नहीं किया 400 है। बना सकते हैं क्या? बिकॉज वी सॉ हाउ गुड इज दिल्ली पिच। इंडिया मैक्सवेल, नहीं बनाएगी यार, वैसे नहीं खेलेंगे इंडिया, इंडिया वाले अच्छा। एक्चुअली। Yeah, actually, इंडिया Vishnu नहीं and I met बनाएगी। yesterday for chai, and we were talking that South Africa का जो end over में acceleration है, even England cannot गजब है match वो। it right now. नो नो मतलब नो। मुझे सबसे ज्यादा जो इच्छा हो रही है ना मैच की अभी देखने की, वो हो रही है इंग्लैंड साउथ अफ्रीका। दोनों वो सेम मुंबई में, टेम्पलेट से खेल रहे हैं। वो मुंबई अच्छा, में। हाँ। ओ माय गॉड, But वो I have 400 to, प्लस है बैटिंग भाई। हेवन, बैटिंग पैराडाइज, मजा आएगा। yeah. बैटिंग No, but एवन, South छोटा Africa जो ग्राउंड। acceleration कर रही है और end में, साउथ अफ्रीका मुंबई में इंडिया के खिलाफ 400 से ऊपर बना भी चुकी है, वो जो डिविलियर्स और डेकॉक नहीं वहां हाँ, रन हाँ मारे थे। हाँ हाँ मतलब हाँ मैं उस राइट। टाइम मैं स्टेडियम में ही था भाई, रोने लग गया था मैं तो, जितनी भाई पिटाई हो रही थी। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ था ना, वो भी इंग्लैंड में हुआ 240 था। चेज हुआ था, उसमें भी 230 230, 230 बना दिए थे दोनों ने। 230 चेज हुआ था। हाँ Yeah. हाँ अरे वही इनिंग्स में ना रूट मस्त खेलता है। आई हाँ, थिंक रूट दैट खेल इज रहा था उसमें, द, रूट रूट या बहुत सही खेला। हाँ। गजब ही खेला यार यार फोर्टी उसने। 49 बॉल में 90 मार्करम कुछ जो मारे कि थे उसने। हाँ एक्चुअली मतलब ऐसा 120 100 110 120 स्ट्राइक रेट का बैट्समैन है यार, वो 200 प्लस स्ट्राइक रेट पे सेंचुरी मार पा रहा है। And then they हम्म, have Klaasen in form, Miller in form. Like you cannot have गजब है a यार। more destructive finishers पिच like भी that. क्या सपोर्ट किया है यार, भाई क्या भाई आइडियल मतलब पिच मार्करम मैं फॉर तो लेकिन अपने साउथ अफ्रीकन्स। टॉप फोर चेंज करने की सोच रहा हूँ भाई। Because मतलब England, if you have seen, वो लोग हमेशा 7-8 का रन रेट रखते हैं और एंड ओवर में मे बी 10 के रन रेट से मार सकते हैं, बट ये लोग 14 रन रेट से मार रहे हैं यार साउथ अफ्रीका वाले। क्योंकि ये लोग मिडिल नहीं ओवर्स मार मतलब रहे हैं, क्योंकि ये लोग मिडिल ओवर में मार रहे हैं। इंग्लैंड मिडिल ओवर में भाई विकेट बचा रहे हैं वो एक्चुअली। सच में यार, नहीं 20 टू नहीं, 30 ओवर्स में फ्रीज हो गए ऑस्ट्रेलिया वाले। आई कुडंट मिडिल बिलीव यार। ओवर्स 20 to 40 में दे हैव स्कोर्ड 173, साउथ अफ्रीका 20 to 40 में they have scored बट 173, that is बट just साउथ amazing. अफ्रीका made 220 runs yesterday in first 200 balls. Last 100 balls में they made another 210. मतलब They the see unbelievable that's what they batting. did in Centurion also, like last But 25. replicating that in a World Cup match takes guts. बिकॉज मिडिल ओवर्स में यार तुम्हारे पास चार ही फील्डर बाहर हैं, तो तुम इजीली मार सकते हो। और कल वही हुआ 20 to 30 के फेज में 85 फिर 88, तो Hmm. वहां पे नहीं, बट रासी उनका और इंटेंट भी है ना, मतलब जो हाँ. भी उनका इंटेंट वाली बात है ना, मार तो सभी सकते हैं बट इंटेंट Hmm. देखो ना। और वो And उसको मार्करम इज Klaasen अ मतलब follow जो कर डिफरेंट भी प्लेयर पा रहे हैं सिंस वो. ही started coming in middle order. He is not the same player which he was while he was an opener. तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, और वो समझ गया है कि भाई मैं क्लासन को ब्लॉक कर रहा हूँ, मतलब मैं क्लासन के पहले आ रहा हूँ बैटिंग करने, तो मुझे भाई मारना Hmm. पड़ेगा। क्लासन और मिलर दोनों Yeah. के पहले आ रहा हूँ। ठीक है, हम्म। तो भाई और वो लोग दोनों यानसन को बिठाते हैं, वो भी कितना अच्छा मार लेता है यार. हाँ, वो भी अच्छा मार लेता है यार, उसने भी कल हाँ बढ़िया रन मारे। और कल जो 2 विकेट्स लिए थे शुरू में, दैट इंश्योर्ड कि श्रीलंका वोंट कम क्लोज. जो यानसन ने बहुत अच्छा मैच परफॉर्मेंस और किया. बाकी यार तो उसके बाद भी आंसन 10 ओवर में 90 पड़ा गया, हाँ 95 90 दिया 96। उसने 10 में। हाँ एक्चुअली कुशल मतलब वो मेंडिस का पिच काउंटर गजब है अटैक यार। भी रन्स बहुत बहुत अच्छा देता था है यार. यार। एनडीडी को रुला दिया था कुशल मेंडिस ने एक ओवर वो में. साला लॉर्ड के जैसा है, रन्स देता है, विकेट भी लेता है। भाई कुशल मेंडिस का 76 में 8 सिक्सेस था यार. हाँ, हम्म। वर्ल्ड ठीक है रिकॉर्ड है, गाइस, 10 ओवर में ही उसके 8 लेट्स छक्के थे। लेट्स Oh. रैप अप। आई थिंक वी आर गोइंग ऑफ द वे, तो ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड लेट्स सी टुमारोज मैचेस क्या होता है, और उसके टुमारो बाद आई हम थिंक देयर इज वन मैच ओनली, न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड. नीदरलैंड। या न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड्स। हाँ भाई मैं तो बोल रहा हूँ कॉनवे का एक और 100 आ रहा है.
हाँ, मेरे लिए highest अच्छा है scorer, क्योंकि he is my prediction for top scorer of the World Cup. highest So scorer भाई tournament का. अरे I also have Conway. you also have Conway. अच्छा Yeah. अच्छा, सिर्फ प्रतीक ही बकचोद कुछ सिलेक्ट किया होगा मुझे लगता है. नहीं, भाई प्रतीक ने तो शाहिद को अफगानिस्तान सेलेक्ट के किया किसी प्लेयर होगा. को करा होगा. हाँ, शाहिदी. Please भाई, my blood boils when thinking about Shahidi. तू भाई थर्ड शाहिदी कैप्टन है का भाई. वो पिक लगा क्या ना नेक्स्ट टाइम पीछे. चलो भाई, थैंक यू चलो भाई, बहुत बहुत guys. बधाई Bye सबको. bye. आज बढ़िया दिन था. इंडिया का भी एशिया कप Great का start बेस्ट to the एवर World टैली Cup, रहा. and we और go off 2 points now for us. या Right, right. चलो बाय बाय. ओके, बाय. Bye. थैंक यू. Bye.